Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International School ISWA. Today, I am going to start subject history of Standard 6, and this is second video lecture on the topic Ashoka, who has given up war. Dear students, as we know, and your topic is now about the tribute. Tribute, it means simply we can say those विच आर गिविंग टू एनी पर्सन बाय देयर ओन विलिंग्स, यानी स्वेच्छा से जो है किसी को दान करना. सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर दैट द अनलाइक taxes which was imposed and it was being given by all. So unlike the taxes, this tribute, it was basically given whenever the produce and all the things, it was in a common way. And ये जो ट्रिब्यूट था, जो स्वैच्छिक दान जो किया जाता था, ये अपने मन से जो है राजा और उनके ऑफिशियल्स को जो है ये दान किया जाता था. बिसाइड फ्रॉम दिस ट्रिब्यूट, द मेनी ऑफ द ऑफिशियल्स they were also taken the taxes from the forest peoples. Those peoples who used to reside there, they also take the taxes from the forest people, as in the animals like the elephants, horses, and as in the wood like the timbers which was used for the entire building construction material and for the armies. Okay, now the emperor and the capital city. Dear students, as we know that the Ashokan Empire, okay, and it was elaborated by Megasthenes, who was sent to the court of Chandragupta Empire. Okay, and he was as the Greek, sent by the Greek ruler whose name was Seleucus Nicator. Okay, it means Seleucus Nicator who had sent the ambassador whose name was Megasthenes, and the Megasthenes who is written about the Chandragupta, and the Chandragupta, he had established the Mauryan Empire. So the occasion on which the emperor appears in public were celebrated like a royal procession. It means whenever the kings he used to appear in the public places, then it was seems like that a occasion was being happening there. So likewise he is explaining in his own way like that the golden planquin it means होता है पालकी. सो वहाँ पे ये बतलाया जाता है कि सोने की पालकी जो है वो उनके लिए लाई जाती थी. एंड हिज गार्ड्स ही यूज्ड टू राइड द एलिफेंट एंड he also decorate with gold and silvers. Sometimes the guards they used to carry the live birds. कभी कभी ये देखा जाता था कि जीवित पक्षियों को जो है वो नेट में बंद करके उनके साथ रखा जाता था, और इससे क्या होता था कि वो आसपास जो है वो उनके आसपास मधुर संगीत गाते रहते थे. तो एंड इंक्लूडिंग द ट्रेन पैरट्स भी रहा करते थे. ठीक है, तो बिसाइड ऑल दैट the king it was also surrounded by the armed women which was working as an डिफेंस फॉर द किंग, जो कि एक जो है रक्षक के रूप में राजा के साथ साथ उसे काम कर रहे थे. तो और इसमें यह भी बताया जाता था कि एट दैट टाइम द किंग he used to be afraid, so one of any of the special servant he used to test the food before the king used to eat. कहता है कि ये भी बतलाया जाता था कि उनके खाने के पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य के खाने के पहले जो है वो एक खास नौकर जो होता था वो उस भोजन को चखता था, और उसके बाद जो है राजा उस भोजन को खाते थे. और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि वह एक कमरे में जो है वो 2 रात नहीं सोते थे. तो इट मीन्स व्हाट वी कैन सी है. और ये जो इनकी राजधानी थी, इट वाज इन पाटलिपुत्रा, मॉडर्न डे पटना, जो कि बिहार की राजधानी है पटना. ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि दैट अबाउट 570 टावर्स एंड 64 गेट्स आर फाउंड हेयर. तो द अबेंडेंड पैलेस which has been found here in like a such a way. So what we can assume here that what kind of palace that would be. Okay, and the king palace it was also decorated with wood, and stone carving was also
there, and it was also surrounded with the gardens and enclosure for keeping birds. Dear students, after Chandragupta, Bindusar was there, and after Bindusar, Ashoka was there. So Ashoka, who became the most famous Mauryan ruler, okay, and he was the first ruler who had spread his message throughout the inscriptions, and you all know the inscriptions well, है ना. inscription आपको पता है, that which is inscribed on the stones, okay, for the peoples. Basically the message is given on those inscriptions. तो कहते हैं कि बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन विच वॉज गिवन बाय द अशोका, बेसिकली इट वॉज इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एज वेल एज प्राकृत. जो ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट जो दिए गए थे, है ना, वो क्या थे कि ब्राह्मी और प्राकृत, विच वॉज एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जो कि क्या था, एक जनसाधारण लैंग्वेज था, जिसे जो है वो सारे लोग जो है वो इस तरह क्या करते थे कि इट मीन्स मोर एंड मोर पीपल कैन अटेंड दिस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसे समझ पाएँ, इसीलिए जो है वो इन चीज़ों को बताते थे. अशोका वॉर इन कलिंगा. नाउ कलिंग जो है वो उड़ीसा का पुराना नाम था. एज वी नो दैट उड़ीसा was the coastal areas, and Ashoka who had fought the war and conquered the Kalinga. However, when he saw that the bloodshed and the non-violence at that time, और कलिंगा में जो है जब उन्होंने देखा कि लाखों की तादाद में जो है मृत्यु हो रही है और एक खून की नदियाँ जो है वहाँ पे बहाई जा रही है, then their heart it was melted with all those. जब उनकी जो हृदय है वो इन सभी चीज़ों को देखकर जो है वो पिघल जाता है. एंड he was the only queen who has the history of the world who gave up conquest after winning a war. यानी कि उन्होंने जो है ये एक उदाहरण पेश किया that he was the only king. वो एक ऐसे राजा थे जो कि वॉर जीतने के बाद जो है वो क्या किया, अपने आप को इन सभी चीज़ों से अलग कर लेते हैं. अशोका इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार. तो अशोक का जो इंस्क्रिप्शंस है ना, वो डिस्क्राइब करती है कि कलिंगा वॉर में जो है क्या क्या हुआ था. तो उन्होंने बताया कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा, यानी कि 8 साल, है ना, जब राजा बने उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंगा को जीता. और उसके बाद जो है जब 1.5 लाख लोगों की हत्या, है ना, और 1.5 लाख लोग की जो है वो बंदी बनाया गया, और लाखों लोगों की जब हत्या हो गई है ना, तो वो जो है अपने मन ही मन में जो है ही वॉज फिल्ड विद द सॉरो, अपने मन ही मन जो है वो क्या हुए, दुख से भर गए थे. एंड whenever he used to see that lot of the peoples they were the prisoners, and ब्राह्मीण एज वेल एज द मॉन्क्स दे वेर ऑल्सो डाइड. और ब्राह्मीण उसके साथ साथ जो साधु संत थे वो भी जो है वो मारे जा रहे थे. wherever देर वॉज नो एनी मिस्टेक्स बाई देम, उनकी जो है वो कोई भी गलती वहाँ पे नहीं थी. सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर, और इसीलिए उन्होंने बताया कि दैट ही हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व द धम्म, इसलिए वो जो है धर्म के रास्ते पे चलना शुरू किए. और बाद में जाकर जो है ही हैज़ ऑप्टेड द बुद्धिज़्म, है ना, और बाद में जाकर जो है उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया. एंड ही हैड स्प्रेडेड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक द श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, अलग अलग जगह पे जो है इसे जाकर प्रचार प्रसार किया. एंड दैट्स वाई the Buddhism at it was spreaded, that's why it was also considered as the light of Asia. okay, और कहते हैं कि उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में स्पेशली मैसेज भी दिया दैट वो उन्होंने बताया कि दैट आई वांट दैट माय ग्रैंडसन एंड माय सन दे ऑल वुड नॉट इंडल्ज इन द वॉर, और दे शुड नॉट थिंक अबाउट द वॉर. और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे बेटे और मेरे जो आने वाले जो उत्तराधिकारी होंगे वो सारे के सारे जो है वो उन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि किसी भी लोग को जो है वो किसी तरह वॉर में भाग नहीं लेना चाहिए, इससे जो है किसी का भला नहीं हो पाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, रीड द पैराग्राफ एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.